Hi, this is Amina Sheikh here on Zoom channel, and with me today I have the gorgeous, stunning diva Daisy Shah. Join me as I welcome her on Zoom. Thank you. Lovely outfit you're wearing. I must say that. Thank Who are you. you wearing tonight? Yeah, I was. मैं वेट ही कर रही थी कि सवाल कब आ रहा है बिकॉज आई एम सो बैड एट नेम्स माई स्टाइलिस्ट नोज व्हाट आई एम वेयरिंग टुनाइट whom आई एम वेयरिंग टुनाइट आई एम रियली बैड एट दीज थिंग्स When it comes to Filmfare Awards, and we have seen you coming for the Filmfare Awards, quite often, but Marathi cinema has been quite different. So tell me about it. How you have been associated with it. You have never worked over here, but of course you have seen. आई हैव वर्कड Yeah. इन मराठी सिनेमा. मैंने दगड़ी चाल 2 में मैंने गाना किया है. मारुति इंटरनेशनल जो फिल्म्स ने जो फिल्म बनाई थी, संगीता आहिर, शी इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन एंड शी जस्ट कॉल्ड मी एंड सेड के हे गाणं करायचं आहे. सेड ओके करूया. सो या आय बीन क्लोजली associated with Marathi industry, and Dagdi Chal 2 was the only film that I have worked on till now. Yes, but that's like a special song, Yeah. like when I say that a proper full-fledged role, Yeah. that you have not done. And Huh. Dagdi Jal, of course, we have seen the teaser and we have seen that, pictures also which had gone viral. Yeah. But a full-fledged role is not what you have done, is what I'm trying to say. Should we ask this question to the makers out there? Because next time it will be easier for me to answer. But yeah, no, I'm not bound to any cinema, I would say. For me, I'm very open in working in all kinds of regional cinema because I started from a regional cinema. And I really like to push the bar for my own self because sometimes, in spite of living in Mumbai for all my life, मला येतं मराठी बोलायला, ठीक आहे. बट देर आर लॉट ऑफ थिंग्स वेन इट कम्स टू माई मदर टंग ऑल्सो. वेन आई वॉज डूइंग अ फिल्म इन गुजराती, वेन आई वेंट फॉर द डब आई अंडरस्टूड कि मेरी गुजराती बहुत ख़राब है. तो जब मराठी फिल्म फुल फ्लेज रोल कोई करूँगी तो उसके अंदर मेरी मराठी और बेटर हो जाएगी. जहाँ जो गलतियाँ जो मुंबईया मराठी है शायद वो बदल जाएगी. Well, that's lovely. And Daisy, I believe you're already busy with some interesting project. Tell your fans about it. Yes, the shooting's on a start. Okay, it's commencing in Kashmir from next month, and yeah, we are going on floors. Yippee! But how is work going on for you? And Daisy, we have seen your career churning out into a different level altogether. Yeah. From starting as a choreographer to working with Salman Khan to now doing such good films. Yeah. What do you have to say about it? I'm just blessed, to be very honest. I'm grateful for all the things that has happened in my life, because it's not every day that you get a chance to work with Salman Khan as, a lead, to romance him. I mean, a lot of girls in the world are probably dreaming to do that, and I got to do it. So I am one of those lucky few. And the journey, it's still going on. I'm like, we are still at the start of the journey. अब देखते हैं आगे आगे कहाँ लेके जाते हैं भगवान. And lastly, though, as we talk about Salman, he's been known for his work, but off late he's quite under radar because Yeah. of the entire thing what has happened, the Yeah. attack which happened. What do you have to Yeah. say about that? It's scary, to be very honest, when a news comes out that certain things happened at Galaxy and Salman Khan was inside. So the first fear is like उनको कुछ हुआ तो नहीं है. But luckily everything's fine. He's good, and what I really like about him is that he doesn't pay heed to all these things. He's very normal. उनका ये कहना है कि आप जितना ज़्यादा उसके अंदर फोकस करोगे आप उतना ही ज़्यादा उनको इम्पोर्टेंस दे रहे हो. So leave it. Let's not talk about it. Thank you so much for your lovely time and all the very best. Thank you. Hi, I'm Neha Bajaj and tonight I'm at the red carpet of Filmfare Marathi Awards 2024 और मेरे साथ एक ऐसा नाम है जिसको हर कोई पहचानता है, स्मिता गोंडकर. Very warm welcome on the red carpet. Thank you so much. Okay, Smita, so कैसा लग रहा है red carpet पे आके? I love your outfit. Thank you. I would give that entire credit to my designer, my friend, my stylist. Her name is Richa Ranawat. Thank you so much for this. And बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि of course this is that time of the year that we have a lot of award functions, and Filmfare is something that we look forward to, all of us. So I'm really happy to be here, and I had to be here, of course. Okay, so Smita, ये बताइए कि for an artist, awards like these and such a prestigious Filmfare Awards Marathi कितना मायने रखते हैं? बहुत ज़्यादा मायने रखता है. हम बचपन से फिल्म फेयर देखते आ रहे हैं. We've always dreamt of the black lady. And when it started in Marathi, we were super thrilled. बहुत ही खुशी हुई थी कि अभी मराठी फिल्मों को भी we can also probably qualify for the for the awards. So we're very happy, and we have Marathi awards, Marathi Film Fair. So I'm super happy about it, and it is something. I think they are the pioneers. Come on, we don't really need to talk about them. So क्या मैं तारीफ करूँ? Film Fair है, बस नाम ही काफ़ी है. का नाम ही काफ़ी है. अच्छा, अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में आप कुछ बताइए. वेल आने वाले अभी ऑन फ्लोर 2 फिल्में ऑन फ्लोर हैं. नहीं बता सकती, लेकिन नहीं बता सकती. एक हिंदी है, एक मराठी है.
और नहीं, और अगले महीने एक इंग्लिश है, वो इंटरनेशनल है, बस अभी तो 3 है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि यूर अ महाराष्ट्रियन एंड आपने इतनी मराठी फिल्मों में काम किया है, आपने गाने भी किए, एंड बीइंग अ पंजाबी आई रिकॉग्नाइज्ड योर सॉन्ग, यस, नो 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 नो, आई रिकॉग्नाइज्ड योर सॉन्ग एंड आई टोल्ड माय टीम एज वेल। सो आपके हिसाब से मराठी सिनेमा में ऐसा क्या है जो उसे बहुत डिफरेंट बनाता है, बहुत अलग बनाता है? सी मराठी वी हैव वेरी रिच लिटरेचर, जिसके वजह से एक तो वी हैव अ लॉट ऑफ टैलेंट, बीट राइटिंग, बीट talking about the concepts, talking about movie making. We do have a lot of talented people. Many times yes, Marathi movies do suffer with budget constraints and things like that. Or maybe they suffer because of not proper marketing strategies used, things like that. But if you see the soul of the movie, the scripts of the movie, they're very new. They're very out of the box. So it's not something that you've seen. I mean, the ones which do really good are something way out of the box. So I think that's what the good writing, screenplay, this all stands out. एब्सोल्युटली। अच्छा, आपने बड़े अच्छे से हमें बताया कि ये चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा स्कोप है, और हमने बॉलीवुड में भी कई सारे मराठी कैरेक्टर्स को देखा है। बीट बाजीराव में काशीबाई थी, या और हमने टेलीविजन सोप्स भी देखे हैं। बट आपको लगता है कि जैसे तेलुगु सिनेमा जो है वो पैन इंडिया कहलाया जाने लगा है, अभी मराठी सिनेमा में अभी हल्की सी वो एक स्कोप है कि अभी पैन इंडिया बनना है? It has ये कह सकती हूँ कि there's still a little time for that. But hopefully जल्दी पैन इंडिया बन जाए तो we'll be really happy. बट अभी थोड़ा सा वक्त है। ओके, स्मिता, आपके ऐसे कोई फेवरेट एक्टर्स या डायरेक्टर्स जिनके साथ आप काम करना चाहती हैं, अब तक आपने नहीं किया, बट आपका क्या ड्रीम है? मैं तो सबके साथ काम करना चाहूँगी, मैं सबके साथ काम करना चाहूँगी। एंड अनदर थिंग व्हाट यू हैड जस्ट आस्क्ड मी अबाउट मराठी इंडस्ट्री और मराठी एक्टर्स, आई हैव ऑलवेज रियलाइज्ड दैट दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड, दे आर मोस्ट ऑफ देम आर गुड। आई मीन मराठी एक्टर्स, जब बहुत बार कास्टिंग में ऐसे होता है ना, अच्छा मराठी एक्टर है, अच्छा अच्छा कास्ट कर लो, बिकॉज दे नो वेरी डिसिप्लिन्ड एंड दे गुड परफॉर्मर्स. Most of them come from theatre background, so and we are used to working with a lot of preparation. So when we are on the set, we are not कि कम takes होंगे, ये सब सारी चीज़ें देखी जाती है. तो obviously that is one plus thing that you see a lot of Marathi actors in various and you'll see a lot of Marathi actors coming in all these web series and everything now. So I think there's a lot of scope for everybody. एब्सोल्युटली। और आपने मुझे अभी उन डायरेक्टर्स के नाम बताने हैं जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं। मैंने सोचा भूल जाएगी नहीं, लेकिन मैं सबके साथ काम करना चाहूँगी। जैसे हमारे यहाँ पे मराठी की अगर आप बात करें तो जितने भी टॉप डायरेक्टर्स हैं मैं उनके साथ काम करना चाहूँगी। जैसे अभी फ़िलहाल हाल ही में एक तो आदित्य सरपोतदार जी है, आई थिंक his movies also nominated. उसके बाद then we have Abhijit Panse is there, Ravi Zadav is there, and I think most of them are from Thane only. But nevertheless, there are a lot of new directors coming up. Very surprisingly, I see Sujay Dhake coming up with some nice innovative stories. I would love to work with Nikhil Mahajan as well. So I would love to work with all of them. Yeah. अभी सारे नाम नहीं याद आ रहे, but yeah, I would love to work with them. थैंक यू सो वेरी मच। मेरे साथ हैं गौरी देशपांडे। हेलो गौरी, वेलकम। हाँ, थैंक यू। सो कैसा लग रहा है आपको आज फिल्म फेयर पर रेड कार्पेट पे? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू एंड दिस इज़ माय फर्स्ट एवर फिल्म फेयर अवार्ड्स नाइट, सो आई एम सुपर थ्रिल्ड। Okay, so this is your first time and you've opted for a black satin sari? It's silk. It's Gajji silk, something like that. Okay. So black is the safest color, right? When in doubt, wear black, जो हम कहते हैं, ऐसा कुछ? Of course. And black is my all-time favorite, and it is like black for every occasion. Okay. So गौरी, आप nominate भी हुई हैं आज for Shamchi Ai. So are you nervous? You know what? Actually, I am not, because the people that I have been nominated alongside, they are so great, and they are like seniors and they are legends. I am kind of content that I got a nomination alongside them. That's what a positive spirit. And गौरी, एक बात बताइए, अगर मराठी कोई ऐसी फिल्म, कोई आपकी जो फेवरेट फिल्म है, उसको अगर हिंदी में रीमेक बनाने का आपको मौका मिलेगा तो वो कौन सी मराठी फिल्म होगी और उसमें आप कौन से एक्टर्स कास्ट करेंगे? Oh, that's something to think about. I think Kakas Parsha by Mahesh Manjrekar
I would like to have that made in Hindi. I'm sorry. I'm just don't know. I think I would like to cast Rasika Duggal, Shefali Shah, Vikrant Messi. I can think of 3 names right now. Yeah, definitely them. Oh, I love them. सो इन 3 एक्टर्स को कास्ट करना चाहेंगी. अच्छा, हम थोड़ी सी मराठी क्लासेस करते हैं क्योंकि मेरी मराठी थोड़ी कमज़ोर है, तो मैं आपको कुछ बॉलीवुड फिल्मों के नाम बताऊंगी और आप मुझे उनका मराठी नाम बताएंगे. राइट? सो आर वी रेडी? ओके, कहो ना प्यार है. सांग ना प्रेम है. हम दिल दे चुके सनम. मी तुला हृदय दिलं प्रिये. ओके, ए दिल है मुश्किल. अवघड आहे या जीवाचं. आय डोंट नो, समथिंग लाईक दॅट. ओके, कभी अलविदा ना कहना. कधीच निरोप नको घेऊया. ॲक्च्युली दिस इज व्हेरी लिटरल, बट समथिंग लाईक दॅट. लास्ट इज दिल तो पागल है. वेडा पिसा हृदय. ओके, मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आया, बट दैट वाज रियली स्वीट. एंड अगेन मैं आपके फेवरेट एक्टर्स के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ. गौरी, आपके कौन से फेवरेट एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं जिनके साथ आप काम करना चाहेंगी? आने वाले सालों में अपने आप को उनके साथ बड़े पर्दे पर देखती हैं? जितेंद्र जोशी, मुक्ता बर्वे, वंदना गुप्ते, ऋषिकेश जोशी. And actually, the list is endless, but these are the names that I can think of right now. These are from Marathi industry, of course. And from Hindi, I just told you, Shefali Shah, Rasika Duggal, Jaideep Ahlawat. If I get to play even small part, I would be thrilled. Vijay Verma, for sure. Yeah. ओके, कभी कोई ऐसी मराठी फिल्म या कोई भी ऐसी फिल्म आपको ऑफर हुई है जिसके लिए आपने ना कहा हो ड्यू टू एनी रीज़न? Not really. I am in KG right now in the industry. I've just done 2 Marathi films. So, not really. I haven't said no to a film as of now. ओके, सो ऑल द डायरेक्टर्स आर लिसनिंग, तो अभी तक ना नहीं आई है. थैंक यू सो वेरी मच गौरी. थैंक यू. हाय, मैं हूं नेहा बजाज. यू आर वाचिंग मी ऑन जूम और मेरे साथ है मिस्टर ऋतुराज वानखेड़े, जिनको हमने जयंती में देखा है, दृष्टि भ्रम, हाफ पेस में देखा है. वेरी वेल नोन एंड वेलकम. थैंक यू. वेलकम. ओके. अच्छा, मुझे आपका आउटफिट बहुत अच्छा लग रहा है. रियली लाइक योर पैंट्स. आप इसके बारे में कुछ बताइए. यार, इसके बारे में मैं क्या बताऊँ. ये बस इतनी सारी फिल्में करनी है मुझे और ये उसी हर फिल्म का एक बिल्ला है और कुछ नहीं. ओके. अच्छा, एक बात बताइए, मराठी सिनेमा में ऐसा क्या खास है जो इसे बाकी सिनेमा से अलग हटके बनाता है? यार, मराठी सिनेमा में खास क्या है ये बोलने के बजाय हम ये बोलेंगे कि फिल्मों का जो स्टार्ट हुआ वो किसने किया? तो मराठी फिल्म थी, है ना. सबसे पहले फिल्मों में अगर किसी ने बिकनी पहनी है वो भी मराठी एक्ट्रेस थी. हरिश्चंद्राची फैक्ट्री ये मराठी फिल्म थी. सो खास क्या है, वो तो लीगेसी है इतनी बड़ी. और जो इतने सालों पहले जो सबसे पहले रीजनल सिनेमा, मराठी सिनेमा अगर उन्होंने शुरू किया है मराठी लोगों ने, तो उसमें हमने दूसरों को पूछना चाहिए कि मराठी फिल्मों में और दूसरी फिल्मों से खासियत क्या है. बिकॉज दे आर द इनिशिएटर, दे आर द स्टार्टर. तो अगर वो सब नहीं होते, आप इमेजिन कीजिए पहले जो फिल्में शुरू हुई जहाँ से स्टार्ट हुआ, वो अगर 5 फिल्में नहीं होती तो क्या अभी हम भी ऐसे कैमरा लेके और बहुत सी फिल्में बन पाती. सो दैट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ मराठी फिल्म्स यार, बिकॉज दे आर इन द ओरिजिन्स एंड टिल नाउ. या वेरी वेरी वेल एक्सप्लेन्ड. अच्छा, एक बात बताइए, मराठी सिनेमा में कोई ऐसा जॉनर है जो अब तक एक्सप्लोर नहीं है, जो आप चाहेंगे कि डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स उसको भी एक्सप्लोर करें? यार, वैसे देखा जाए तो मराठी में बहुत सारे बहुत ही यूनिक कंसेप्ट्स होते हैं. जैसे कि सरलाई कोटी अभी एक फिल्म जो अभी नॉमिनेशंस में भी है, आत्म पॉम्पलेट हो गया. बट अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि लाइक एक मार धाड़ वाला एक कमर्शियल फिल्म जो
It's like जैसे RRR बनी थी. yeah, maybe you can say that, but it's a Marathi वाला thing, something like के वो क्या बोलते हैं उसे, बैलगाड़ी से आ रहा है एंड ही इज़ लाइक वो चक्का निकाल के ऐसे कर रहा है, जो भी है यार. तो मुझे लगता है कि वैसा एक मार धाड़ वाला प्रॉपर वाला फिल्म नहीं आया है अब तक. और दूसरा कॉप वाली, ऑब्वियसली कॉप की जो कॉप में जो लीड कॉप जो है वो वाली फिल्म अब तक किसी ने एक्सप्लोर क्यों नहीं की पता नहीं. वो करनी चाहिए जल्द से जल्द. All right, very well said for all the action enthusiasts. बड़ा ही अच्छा आइडिया आपने दिया है. अच्छा, एक बात बताइए, ऐसी कोई मराठी फिल्म है जो आपको बहुत पसंद है और आप चाहेंगे कि उसका हिंदी रीमेक भी बने, और अगर बनेगा तो उसमें कौन होना चाहिए? के ऐसी अशी ही बनवा बनवी, ये फिल्म मेरे बहुत दिल के करीब है और यही फिल्म का रीमेक होना चाहिए. और वो फिल्म ऑब्वियसली आप सब जानते हैं कि 20 साल पहले 25 साल पहले बनी है, तो अभी वो हिंदी में बने और उसमें कौन कौन आएंगे तो हम भी उसमें से एक रह पाएंगे, है ना. सो अरे ऑब्वियसली यार, लक्ष्मीकांत जी का बेटा अभी है, सो अभिनय बेडे विल बी अ बेटर चॉइस. एंड फॉर सचिन आई गेस अंकुश दा है, अंकुश वो भी कर सकते हैं. एंड एक तो मैं कर ही सकता हूँ, सो इट्स लाइक दैट. थैंक यू सो वेरी मच. शर्लिन चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर दिखाया अपना शायराना अंदाज. शर्लिन ने अपनी कुछ पिक्चर्स पोस्ट करते हुए ऑन हर इंस्टाग्राम कैप्शन में लिखा, मुस्कुराने से शुरू और रुलाने पर खत्म, इस जुल्म को लोग मोहब्बत कहते हैं. इसके साथ शर्लिन ने अपनी जो पिक्चर शेयर की उसमें उन्हें रेड कलर के आउटफिट में पोज देते देखा जा सकता है. शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की करीब 97 करोड़ की प्रॉपर्टी ईडी के जब्त करने के बाद राज कुंद्रा ने शेयर किया है क्रिप्टिक नोट, व्हिच अपीयर्स टू बी हिज रिएक्शन टू द क्लेम्स. राज कुंद्रा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक रोरिंग लायन की पिक्चर शेयर की जिस पर लिखा है, लर्निंग टू स्टे काम व्हेन यू फील डिसरिस्पेक्टेड इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रोथ. वहीं उनकी दूसरी स्टोरी पर लिखा है, देयर इज अ टाइम टू बी अ नाइस पर्सन एंड देयर इज अ टाइम टू से इनफ इज इनफ. सीम्स लाइक राज खुद का नाम बार बार कंट्रोवर्शियल मामले से जुड़ता देख तंग आ गए हैं, जबकि शिल्पा का इस पर अभी तक कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है. डिजाइनर मसाबा गुप्ता और उनके हस्बैंड सत्यदीप मिश्रा ने अपनी प्रेगनेंसी की अनाउंस. अपने एक जॉइंट पोस्ट में मसाबा और सत्यदीप ने ये गुड न्यूज फैंस के साथ शेयर करते हुए लिखा, इन अदर न्यूज 2 little feet are on their way to us. Please send love, blessings and banana chips, plain salted only. #baby on board, #mom and dad. इसके साथ जो पिक्चर उन्होंने शेयर की थी वो एक प्रेग्नेंट मॉम का इमोजी था, जबकि इस पोस्ट के साथ शेयर की गई एक और पिक्चर में कपल इज सीन सिटिंग अगेंस्ट अ वॉल which has 2 feet painted on it. कपल के इस पोस्ट पर कई सेलिब्रिटीज ने उन्हें बधाइयां दी हैं, जिसमें करीना कपूर खान, सोनी राजदान, अनन्या पांडे और कई और शामिल हैं. हर्षवर्धन कपूर को सोशल मीडिया पर अनिल कपूर का नाम लेकर किया गया ट्रोल, जिस पर हर्षवर्धन ने भी उन्हें ट्रोल करने वाले यूजर को दिया करारा जवाब. दरअसल हर्षवर्धन कपूर ने रिसेंटली एक ट्वीट किया था और उस पर एक यूजर ने उन्हें एक्यूज किया कि वो अपने पापा के पैसे स्नीकर्स पर उड़ा रहे हैं, जिसके जवाब में हर्षवर्धन ने लिखा, वेयर कैन आई वॉच योर फिल्म्स, हाउ मेनी हैव यू डन, आई हैव डन रे, थार, भावेश जोशी एंड AK वर्सेस AK मिर्जिया, हु आर यू, एन irrelevant loser who is bitter on Twitter, who started supporting City once they got rich with Arab money. हर्षवर्धन कपूर ने फिल्म मिर्जिया से अपना डेब्यू किया था इन 2016, लेकिन अब तक उन्हें बॉलीवुड में वो पॉपुलैरिटी नहीं मिली है जैसे उनके फादर अनिल कपूर एंजॉय करते हैं.